Good morning, class 7 students. Today we are going to start the third chapter of your mathematics book. That's its heading is data handling. Data handling is a little bit easy chapter. You see in this earlier classes also you must have studied this chapter. So first of all, what is the data, and you already know how various types of data you learned in earlier classes, how to collect the data, what is raw data, what is random data, and what is the connected collection of data. In collect data, table it, and how to put the data in table form, that you must have learned in earlier classes. Put it in the form of graphs also. बार graphs भी आपने पहले पढ़े होंगे. कलेक्ट क्यों करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और डेटा को प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, अलग अलग ग्राफ्स में, चार्ट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि we can understand it, the variation in the quantity और commodity, उसमें changes कितने पीरियड में कितने चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उनको शो करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए का रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन किया जाता है. So in this chapter we will take one more step towards learning how to do this. You will come across some more kinds of data and graphs. इसमें और ज़्यादा हम लोग डिटेल में और ग्राफ्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. You have seen several kinds of data through newspapers, magazines, television and other sources. You also know that all data give us some of sort of information. जब आपने कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा होगा पहले, तो दैट इज़ डेटा मीन्स इट हैज़ सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी, इसीलिए उसको डेटा कहा जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है to get the some sort of information. Now in this you can see the table 3.1. There is a table of temperature of cities as on 26/2006. इसका अलग अलग सिटीज़ में टेम्परेचर मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था उसका कलेक्शन किया गया है. मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन हिंदी टेस्ट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आर 4, 5, 8, 6, 7. इस तरह का डेटा भी है. देन फुटबॉल टेबल 3.2 में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006, यूक्रेन बीट साउथ अरेबिया बाय 4-0, स्पेन बीट 3.3 में डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन क्लास. इस तरह से डेटा आप हर वीक में कितने लोग एब्सेंट थे. मंडे को 3 एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था. इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब जो फिगर इसमें बनाया है सर्कल और उस फेस ऑफ एनी चाइल्ड, उसको रिप्रेजेंट्स वन चाइल्ड. एक फेस जो है वो एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको आप बता सकते हैं कि एक फेस 2 चाइल्ड है या एक फेस अगर ज़्यादा, इफ़ इट इज़ मोर स्टूडेंट्स देन यू कैन मेक इट मोर नंबर. Okay, so this type of collection of data you can do. What do these collections of data tell you? For example, you can say that highest maximum temperature was in Jammu. तो जो टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट आप रखते हैं उसमें आपको मैक्सिमम कब था, कितने दिन था, किस डेट पे था, डे पे था, किस दिन कितने एब्सेंट थे, किस दिन कोई सब प्रेजेंट थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था. इस तरह का उसमें से एनालिसिस हम कर सकते हैं. Can we organize and present these data in different ways so that their analysis and interpretation becomes better? We shall address such questions in this chapter. इसी डेटा को हम और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लियरली, जिससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So collecting data, the data about the temperature of cities can tell us many things, but it will not tell us the city which had the highest maximum temperature during the year. To find that, we need to collect data regarding the highest maximum temperature reached in each of these cities during the year. In that case, the temperature chart of one particular date of the year will not be sufficient. पूरे साल का अगर निकालना है तो सिर्फ एक डेट का
may not give us a specific information related to that data. कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, इससे सिर्फ एक डेट की मिलेगी. फॉर दिस वी नीड टू कलेक्ट डेटा कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. In the above case, the specific information needed by us was about the highest maximum temperature of the cities during the year. Before collecting data, we need to know what we would use it for. वो इसमें से इस थ्योरी से हमको ये पता चलता है, दिस कंक्लूजन वी आर गेटिंग दैट कोई भी डेटा कलेक्ट करने से पहले हमें उसका कॉज फाइंड करना है कि हमें वो डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, वाई वी आर कलेक्टिंग दैट डेटा. वाई मतलब उसका कॉज पता होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट हम डेटा कलेक्ट करेंगे. गिवन बिलो आर ए फ्यू सिचुएशंस. यू वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन ए गिवन एरिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू. इस तरह के अलग अलग डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं. बट कितना आपको ईयरली देखना है, मंथली देखना है या वीकली देखना है, उसके ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड यू नीड इन द अबव सिचुएशंस? Unless and until you collect appropriate data, you cannot know the desired information. What is the appropriate data for each? Discuss with your friends and identify the data you would need for each. Some of this data is easy to collect and some difficult. फिर इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी पता करनी है, उसके हिसाब से आपको डेटा कलेक्ट करना है. सो कलेक्टिंग डेटा मीन्स वट एवर इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट यू कलेक्ट द data. Organization means when we collect data we have to record and organize it. Why do we need to that? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वट एवर डेटा वी कलेक्ट अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हमको करना पड़ेगा, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पर्टिकुलर नाम के, इसे रैंडमली हम डेटा को नहीं रख सकते. तो अगर हम उसको पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज करेंगे तो देन वी विल गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन. Okay, this like here in table 3.4 they have given Ajay, Aman, Ashish, Dipti, Faizan marks out of 50, roll number. Here they are arranged according to roll number 6, 7, 8, 9, 10. Names 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10. According to roll number they organize the data so that we can easily assess the data of any one roll number. Okay, so any particular manner you have to organize your data. Weight, now on the basis of this you try these question. Weight in kg at least 20 children, girls and boys of your class. Organize the data and answer the following questions using this data. Who is the heaviest of all? What is the most common weight? What is the difference between your weight and that of your best friend? 20 चिल्ड्रन एटलीस्ट लेने हैं आपको. गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं आपकी क्लास की. 20 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम 20 लेना है. उनको रोल नंबर वाइज अरेंज कीजिए, सबका वेट लिखिए, उसमें से फिर फाइंड कीजिए कि हैवीएस्ट किसका है. फिर कॉमन वेट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा वेट कितने लोगों का है. आप योर वेट और आपके बेस्ट फ्रेंड के वेट के बीच का डिफरेंस निकालिए. सो दिस इज़ ईजी. यू मेक द टेबल अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन इन 3.4 एंड 3.5. इसमें रोल नंबर लिखिए, फिर नाम लिखिए और फिर मार्क्स आउट ऑफ 50 की जगह आप लिखिए वेट ऑफ चिल्ड्रन इन kg. इस तरह से सबका वेट लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, फर्दर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.